we are going to discuss about measures of central tendency in statistics. Earlier, we have studied that why statistics is required, why statistics is a different discipline has been developed. And later on, we also have discussed about measures of central tendency, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसा कि नाम से पता पड़ता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति. व्हाट हियर वी मीन केंद्रीय प्रवृत्ति और से सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट if any type of data, if any type of situation where some numbers are lesser, some numbers are more value, some numbers have more values, some numbers have less values, some numbers have moderate values. And then if you want to get the average of those values, for example, when a student appeared in a 5 subjects, and each paper has 100 marks maximum, and a student got 36 in one paper, 85 in another paper, and 3 papers he got between 36 and 85. That is his total attainment of marks in 5 papers or say 5 subjects. But this would not solve the purpose for a student and for other people to understand that how average he got, so so he can be compared with other students. So when we average all those marks of 5 papers, that is percentage in general we say, but in statistics that is called central tendency. Why? Because that value tells us about the average performance of that student. And another example we can have is per capita income, which government of India calculate in a particular year of total population, or so a total total population of India. When total income divided by total population, we can say it. That means per capita income we can have. So, for example, if in India have 10,000 rupees per annum per capita income, then we can say average 10,000 per capita income is average. So below this, those are that are earning less than those are earning less than average, and above that more than average. And someone earning 10 crores of rupees annually, then we can say they are earning a lot, so they can be taxed. This is a system. So for at each and every place, average is required. Average here in statistics means central tendency, केंद्रीय प्रवृत्ति, जो हमें ये बताती है कि उस पूरी सिस्टम का या पूरी सीरीज का या पूरे व्यक्तियों के समूह का या उस व्यक्ति का या उस देश का या उस राज्य का, उस लंबाई का, उस चौड़ाई का, उस दूरी का, किसी भी तरह की जो बात होती है कुल मिला के, जो जहाँ पर एक से ज़्यादा डाटा हैं उनके बारे में एवरेज पोजीशन बताती है, उनकी सेंट्रल वैल्यू बताती है.
जैसे अपन बात करें कि कोटा से जयपुर की दूरी मान लीजिए 250 किलोमीटर है, तो बीच का स्थान जो पड़ेगा वो मिड पॉइंट हो गया। जो वो मिड पॉइंट है वही एक तरह से अपना सेंट्रल वैल्यू हो गया, जिसको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में मीडियन बोलेंगे, वो सेंट्रल वैल्यू हो गया। इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बात की जाती है स्टैटिस्टिक्स में, यानी मैथमेटिक्स में अपन एवरेज कर सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सेंट्रल वैल्यू बता देती है, जिससे अपन दूसरे से भी कंपेयर कर सके और उसके बारे में भी अपन अनुमान लगा सके कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देन नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट what type of central tendencies are. So in a major division, one is positional averages and number two is arithmetical averages, or say one is positional central values, number two is mathematical or say arithmetical central values. In the first type of division, मीडियन मोड, हम डिस्कस किया पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस में आ जाएंगे मीडियन और मोड, जो किसी पर्टिकुलर डाटा की या पर्टिकुलर सिचुएशन की पोजीशन बताते हैं। जैसे हम कहें कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका परसेंटेज निकाला गया, वो तो अर्थमेटिक मीन हुआ जो उनका रियल पोजीशन बता रहे हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें मीडियन परसेंटेज, कम परसेंटेज से बढ़ाते हुए हायर परसेंटेज की एक सिस्टम बनाए, डाटा बनाए, पहले सबसे कम परसेंटेज किस स्टूडेंट की आई, देन हाईएस्ट 50 तक किस स्टूडेंट की आई, इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में बनाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाए। उसमें जो मीडियन परसेंटेज निकलेगा, उस मीडियन परसेंटेज से ये पता चलता है कि इस क्लास में आधे स्टूडेंट का इस मीडियन परसेंटेज से कम मार्क्स है और आधे स्टूडेंट के मीडियन परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स। इसी तरह मोड होता है। मोड का मतलब होता है एक तरह से फैशन से इससे जुड़ा गया है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो पर्टिकुलर सीरीज में पर्टिकुलर सिचुएशन में मोड होता है। जैसे पर्टिकुलर टाइम पर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही होती है, तो उसको अपन यहाँ पर मोड के रूप में भी कर सकते हैं, मोड, मॉडर्न, इस तरह से, तो वो पोजीशन बताती है। और अर्थमेटिकल एवरेज और से मैथमेटिकल जो एवरेजेज है, उनमें प्योर अर्थमेटिकल होते हैं, वो कोई भी कैलकुलेट करे वही उसके उनका रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो चीज़ है वो मैथमेटिकल है, इसलिए उनका नाम मैथमेटिकल दिया, क्योंकि वो एक्यूरेट है, वो कोई भी कैलकुलेट करेगा वही आएंगे और वो बताते हैं अपने को। जैसे परसेंटेज निकालना, वो अर्थमेटिक मीन हो गया मार्क्स का, इनकम का अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो इनकम का एवरेज हो गया। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, कंट्री की भी हो सकती है, किसी का भी जो एवरेज अगर उन टोटल करके और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का भाग दे लेंगे, वो मैथमेटिकल है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज में तो क्या जोड़ के और नंबर ऑफ आइटम्स का भाग देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि उन डाटा को या उन फिगर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसका रूट निकाला